Hello everyone. Last class we were discussing about the summary of chapter number 7 and we were discussing about some PPT of chapter number 7. I think 4 to 5 PPT already I have explained you and last 1 or 2 PPT was left. Okay, let us start. Which of the PPT we have done according to me 4 to 5 PPT already I have explained you. Last एक दो बाकी था. Let us check. Yes, this also we have finished. Yes, then this also I think we have discussed. इसके बाद वाला भी I think we have discussed this. Molasses concept, yes, this also we have discussed. And we have to start from here, right? Yes. Substance obtained by a microbial processing. What are the substance which is obtained is, पहला है citric acid, malic acid, lactic acid. These are the different acids which we obtain from microbial processing, right? And सबका अलग अलग function है. Let us start. पहला है, these are the substance which we can obtain from microbial processing, and the substance are citric acid, malic acid, and lactic acid. And what are the use of this? This is used to impart acidity in a substance. किसी substance, किसी food में अगर acidity impart करना है, तो we have to use which type of acid? Citric acid, malic acid, and lactic acid. Next is a glutamic acid, lysine and tryptophan. इसका नाम दिखाई दे रहा है आपको? Glutamic acid, lysine, tryptophan. These are the substance which we can obtain with the help of microorganisms. And इनका किसके लिए काम होता है? They are used for protein binding. दो protein molecules को आपस में bind करने के लिए, join करने के लिए, for protein binding, we need this type of molecules. Next is niacin and netamycin. Next बाजू में दिखाई दे रहा है is niacin and netamycin. These are the substance which we can obtain from microorganisms. And इनका uses क्या? What is the use? They are microbial restrictor. मतलब they doesn't allow the microorganisms to grow. Microorganisms के growth को kill करते हैं. They are called as the microbial restrictor, growth of microorganisms, or kill the growth of microorganisms, or kill the microorganisms. Next is देखो ascorbic acid, vitamin C, vitamin B12, vitamin B2. They are used as an antioxidant. Already हमने discuss किया था about antioxidant. What is antioxidant? जो oxidation को नहीं होने देता food को. ज़्यादा oxidation of food होगा, it can give rise to a cancer. याद मैंने बताया था. So they are antioxidants. इसका वीडियो भी दिखाया था. And they can also be used as a vitamins. उसके बाद है beta carotene. क्या है? Beta carotene, lycopene, xanthin, lutein. They are edible colors. अगर food में आपको colors बनाना है, अगर food में colors चाहिए, then we should use what? We should use this type of substance to provide a colors, edible colors. Next is the polysaccharide glycolipids. ये सब किसके? These are the substance which we can obtain from the microorganisms and they are used as an emulsifier. What is emulsifier? अगर दो immiscible liquid, if there are two immiscible liquid unable to combine or mix, आप क्या करो? Emulsifier डालो, वो liquid को क्या करेगा? Disperse कर देगा. Oil and water. Oil floats over the water और ऑयल को आपको डिस्पर्स करना है चारों बाजू. यूज दिस सब्सटेंस, दे आर इमल्सिफायर. ऑयल को इक्वली चारों बाजू डिस्पर्स कर देंगे, तो दे आर यूज्ड एज इमल्सिफायर. दिस आर द सब्सटेंस. व्हाट आर दे? वैनिलीन, इथाइल ब्यूटरेट, पेपरमिंट. ऐसे सब्सटेंस वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिजम्स. और इसका काम क्या है? दे कैन यूज एज एसेंस इन द फूड. स्मेल का काम करते हैं, एसेंस का काम करते हैं. एंड लास्ट में जो दिया हुआ है xylitol और aspartame, these are the substance are used as a artificial sweetener या लो कैलोरी हम डालते हैं ना शुगर के अंदर, शुगर फ्री फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, लो कैलोरी के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर के लिए काम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज माइक्रोब्स यूज्ड फॉर एंटीबायोटिक्स. वेल एंटीबायोटिक्स, व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? आपको मालूम है कार्बन कंपाउंड्स obtained from what? Fungi and bacteria and which can kill the growth of other microorganisms. एक ऐसा chemical substance, ऐसा compound जो क्या कर सकता है? दूसरे microbes को kill कर सकता है. It's called antibiotics. These antibiotics are prepared from different type of microbes.
तो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब से हम एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस कर सकते हैं और इस एंटीबायोटिक से हम बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। तो माइक्रोब कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, हमने डिस्कस किया था। देन माइक्रोब कैन बी यूज एज अ फ्यूल, मैंने बताया था गैसियस फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एज वेल एज सॉलिड फ्यूल। गैसियस फ्यूल में मीथेन, लिक्विड फ्यूल में इथेनॉल, स्मोकलेस एंड हाइड्रोजन गैस। याद है मैंने बताया था हाइड्रोजन गैस को वाटर को स्प्लिट करोगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन कुछ माइक्रोब से भी हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर, सनलाइट से वाटर को स्प्लिट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड माइक्रोब्स कैन बी यूज एज अ फ्यूल। नेक्स्ट इज बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स मतलब व्हेन अ लिविंग बीइंग यूज एज अ फ्यूल। और बायो में इसका याद है ट्रीज, प्लांट, प्लांट को हमने डायग्राम था ना बायोफ्यूल। ओके, प्लांट से हम लोग क्या क्या सॉलिड फ्यूल भी ऑब्टेन कर सकते हैं, लिक्विड भी ऑब्टेन कर सकते हैं, गैसेस। सॉलिड में क्या था, चारकोल, काउ डंग, क्रॉप रेसिड्यू। लिक्विड फ्यूल में था वेजिटेबल ऑयल, अल्कोहल। और गैसेस फ्यूल में था गोबर गैस, कोल गैस। दिस ऑल द गैसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। प्लांट इज अ लिविंग बीइंग, तो लिविंग बीइंग से ऑब्टेन कर रहे तो बायो फ्यूल्स अगेन विद हेल्प ऑफ माइक्रोबियल प्रोसेस। और प्लांट को हमको डिकम्पोज करने का विद हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। देन माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया माइक्रोब्स को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, पोल्यूशन के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल में यूज कर सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स व्हिच कैन बी डिग्रेडेड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसके बारे में हमने डीप स्टडी किया था अबाउट द माइक्रोब्स यूज्ड टू व्हाट, टू किल द पोल्यूटेंट। ओके, नेक्स्ट इज सीवेज मैनेजमेंट। उसमें इसमें हम लोगों ने मॉडर्न लैंडफिल साइट पढ़ा था, याद है। मॉडर्न लैंडफिल साइट हम सॉइल को डिग करते हैं, वेस्ट को डाल देते हैं, चारों बाजू प्लास्टिक लाइनिंग लगा देते हैं क्योंकि लीकेज ना हो, यानी लीचिंग ना हो। द वेस्ट वाटर शुड नॉट एंटर इनटू द ग्राउंड वाटर। वेस्ट डिकम्पोज होगा एंड उसमें से बायोगैस प्रोड्यूस होगा और नीचे भी मैन्योर मिलता है। देन सीवेज मैनेजमेंट, सीवेज से जो वेस्ट आता है उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स है, बैक्टीरिया, वायरसेस है जो हमको हार्म कर सकते हैं। ये सीवेज, सीवेज को हम लोग क्या करते हैं, जो गंदा पानी आता है सीवेज का, उसको हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजते हैं। दे फिल्टर इट आउट, मेक इट वेरी प्योर दैट सीवेज का वाटर, एंड देन वी डिस्चार्ज इनटू द एनवायरमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट में भी ये यूज होता है। देन क्लीन टेक्नोलॉजी, याद है मैंने बताया था क्लीन टेक्नोलॉजी, द टेक्नोलॉजी इन विच पॉल्यूशन सबसे कम होता है। तो माइक्रोब्स यूज करते हैं क्लीन टेक्नोलॉजी में। सम माइक्रोब्स यूज टू रिमूव द सल्फर फ्रॉम द फ्यूल, कुछ सल्फर को निकाल सकते हैं फ्यूल से, मैंने बताया था। सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड कॉज करता है एंड कैन गिव राइज टू एसिड रेन। देयर आर सर्टेन माइक्रोब्स व्हिच कैन रिमूव द मेटल्स। मेटल टॉक्सिक मेटल है, सॉइल में जाएंगे, टॉक्सिसिटी बढ़ाएंगे, उनको लोग क्या करते हैं, कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। तो देयर आर द माइक्रोब्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन क्लीन टेक्नोलॉजी। देन माइक्रोब्स इनोकुलेंट्स, याद है हम माइक्रोब्स को जानबूझ के क्या कर सकते हैं बेटा, ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया सीड्स के ऊपर क्या करते हैं, सीड्स के ऊपर हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लगा देते हैं एंड जब सॉइल में डालेंगे तो सेरेल प्लांट्स के पास भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होगा। वो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को क्या करेगा, सॉइल के अंदर क्या करेगा, कोकेन फिक्स करेगा एंड वो यू कैन गेट अ व्हाट, हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, एंड जिससे प्लांट्स को ग्रो होने में इजी होगी। माइक्रोब्स को हम जानबूझ के ऐड कर रहे हैं, तो माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स। ओके, एंड लास्ट में था बायो इंसेक्टिसाइड। मैंने आपको बताया लिविंग बीइंग कैन बी यूज्ड टू किल द इंसेक्ट्स, इज कॉल्ड बायो इंसेक्टिसाइड। कुछ फंगस बैक्टीरिया का डीएनए लेके हम लोग प्लांट के लीव्स में डाल देंगे, तो जो फंगस बैक्टीरिया टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है वो प्लांट का लीव्स ही प्रोड्यूस करेगा। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इंसेक्ट्स है उनको नहीं खाएंगे क्योंकि उनके लिए वो टॉक्सिक है और प्लांट्स आपका सेव हो जाएगा। तो लिविंग बीइंग से आप इंसेक्ट्स को किल कर रहे हो, तो बायो इंसेक्टिसाइड। दिस इज व्हाट अबाउट द चैप्टर। मैंने ब्रीफ में एक्सप्लेन किया, बट याद है ना उसको डीप में लर्न करना है। ओके, तो दिस चैप्टर ऑलमोस्ट वी हैव डन। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन वी विल हैव टू लर्न। तो लर्न करना चालू कर दो धीरे धीरे, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो मैं वर्कशीट बोला उसको खत्म करो, देन उसका टेस्ट रखेंगे, बट साइड बाय साइड में इसको लर्न करना चालू करो क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है। तो दिस चैप्टर हैज बीन डन। आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट हो है। अगर डाउट की ऑलरेडी बहुत लेक्चर 6 to 7 लेक्चर्स हमने लिया इस चैप्टर में, इसके बावजूद भी अगर डाउट है मुझे पर्सनली कॉल करोगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास, we are going to start a new chapter which is cell biology and biotechnology, which is the 8th chapter of science 2. Okay, and the 5th chapter which we are going to do, so we are going to start. Okay, let's go. Okay, so we are going to start chapter number 8,
that is cell biology and biotechnology. थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर अदर देन माइक्रोब से तो ज़्यादा बेटर है, मुझे ऐसा लगता है आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगेगा चैप्टर. So without wasting a time, we start with the chapter cell biology and biotechnology. There are many things of this chapter जो already हमने किस में लर्न किया बेटा, we have learned in a 9th standard. ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो हमने already 9th standard में लर्न किया हुआ है. Okay, so the first page will be the revision for this. Okay, the first question is what is the cell? First question दिखाई दे रहा है, what is the cell? Anybody can define cell, talk about definitions of what is cell? Cell is the basic structural and functional unit of a living being. What is the cell? Cell is the basic structural and functional unit of living being. यानी हम लोग living being है, हमारा पूरा का पूरा structure, हमारा पूरा का पूरा function कौन decide करता है बेटा? The cells present in your body. So the cell is the basic structural and functional unit of the body. हमारा पूरा body किससे बना हुआ है? हमारा पूरा का पूरा body cell से बना हुआ है. The whole body is made up of cell. कौन सा cell? Animal cell. तो we are animal. तो हमारा body किससे बना हुआ है? हमारा body animal cell से बना हुआ है. तो हमारा पूरा structure, हमारा पूरा functions कौन decide करता है बेटा? हमारा body का cell decide करता है. तो what is a cell? Cell is the basic structural and functional unit of living. कितने सेल होते हैं सर हमारे बॉडी के अंदर? हमारे बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स. कितना? 30 ट्रिलियन सेल्स. ओके, सॉरी फॉर प्रॉपर कंजेशन है मुझे थ्रोट में, तो थोड़ा एडजस्ट करना फॉर साउंड क्वालिटी. ओके, तो सेल कितने होते हैं? 30 ट्रिलियन सेल्स. 30 ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है. मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन. 30 ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. 30 ट्रिलियन सेल्स कंबाइन टुगेदर एंड देन योर बॉडी इज फॉर्म. 30 ट्रिलियन, बहुत ज्यादा. The cell is the basic structural and functional unit of living being and 30 trillion cells make your body. The cell समझ में आए? What is the tissues? Tissue कैसे होता है आपको मालूम है? The cells combine together to form a tissue. हमारा बॉडी सेल से स्टार्ट होता है. द पहला फॉर्मेशन हमारे बॉडी में क्या होता है बेटा? जाइगोट. जाइगोट कैसे बनता है? द sperm of male and the egg of the female join together and the first cell is formed called as the zygote. The zygote starts doing the cell division और धीरे धीरे number of cells start increasing and फार्म में हम लोग unicellular से multicellular में change होते हैं and finally the body changes from cells to tissue changes to organ changes to organ system and finally the organ system changes to a big organism. Understood? तो द सेल हमारे बॉडी में कंबाइन होके क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं. तो सेल का डेफिनेशन आपने क्या लिखा? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग. सो सर टिश्यू का डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन अ ग्रुप ऑफ सेल्स. व्हाट इज टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ सेम ओरिजिन. अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू. ये चैप्टर नंबर 17 9th स्टैंडर्ड में लर्न किया था. अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन. सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू. अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ सेम स्ट्रक्चर, सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन. एंड विच आर द फंक्शंस ऑफ टिश्यू? द टिश्यूज फंक्शन ऑफ टिश्यूज तो बहुत सारे आपको याद हो रहा है. एनिमल्स टिश्यू अलग थे, प्लांट टिश्यू अलग थे. एनिमल टिश्यू आपको याद होगा, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज. दीज वर एनिमल टिश्यूज. एंड प्लांट टिश्यू क्या थे याद है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. याद हमने 9th में लर्न किया था. तो देयर आर एनिमल टिश्यूज अलग होते हैं, प्लांट टिश्यूज अलग होते हैं एंड सबका अलग अलग फंक्शन होता है. मैं ब्रीफली आपको खाली एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टिश्यूज. First we discuss about the animal tissues. The animal tissues में क्या है? First is epithelial tissues. Animal tissues में what is epithelial? The layer, skin. Inner layer, outer layer body का epithelial tissue से बना हुआ है. The epithelial tissues act as a protecting covering of the various organ and organ system. So the first animal tissue is epithelial tissues. Epithelial tissues forms a layer. Body का outer layer हो या body का inner layer,
दोनों फॉर्म करता है। तो एपिथेलियल टिश्यू एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। हमारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के ऊपर जो कवरिंग फॉर्म करता है इज एपिथेलियल टिश्यू। तो पहला फंक्शन हो गया, दे फॉर्म अ कवर टिश्यूज। सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू मतलब द टिश्यू विच कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। इसके बारे में हमने क्या लर्न किया था, याद है? लिगामेंट, कार्टिलेज, एडिपोस, ब्लड, बोन, ये सब हमने डिस्कस किया था बेटा। They all connect one part of body to the another, so they are connective tissues. So connective tissues such as blood, bones, cartilage join the different parts of the body. So the second function of the tissue is it joins the one part of the body to another. पहला था they form a layer or covering of organ and organ system, and second point था they join the one part of the body to another. Next is a muscular tissues. Muscular tissue याद है? Voluntary, involuntary, striated, non-striated, cardiac, तीन टाइप था। 9 Sunday में learn किया था, same thing. Muscular tissues help in the movement of body parts, and they also provide support and help to maintain the posture. सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है एंड दे हेल्प टू मेंटेन द पोस्चर। तो सपोर्ट प्रोवाइड करना और आपके पोस्चर को मेंटेन करने का काम किसका होता है? विच इज अ बोन, विच इज अ मस्कुलर टिश्यू, सॉरी मस्कुलर टिश्यू। And last part is nervous tissue. Nervous tissue मतलब comprised of nervous system which carry the messages. So the 4 type of tissues which is present in the animal is nervous tissue. The nervous tissue enable the body to respond to the various stimuli. The various stimulus या various stimuli को respond कर पाते हैं because of nervous tissues. And it is made up of brain and spinal cord and different neurons. Plant tissue दो टाइप कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। याद है? मेरिस्टेमेटिक में द मेन फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैन शो अ सेल डिवीजन। प्लांट्स के अंदर दो टाइप के टिश्यू, एक मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स कैन शो अ सेल डिवीजन, कैन फॉर्म अ न्यू सेल्स, एंड परमानेंट टिश्यूज टेक अ परमानेंट शेप एंड साइज, दे डू नॉट शो अ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के हिसाब से हमने टिश्यू, प्लांट टिश्यू को दो टाइप में डिवाइड किया था, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। सो द मेन फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज टू ब्रिंग अबाउट द प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। तो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। एंड परमानेंट टिश्यू मतलब परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन सच एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर, प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड, गिविंग सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। ये सारा काम द परमानेंट टिश्यू डज इन द प्लांट। तो अब देखो टिश्यू का बहुत सारा फंक्शन है। वो कवरिंग लेयर भी फॉर्म करता है, वो एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी से कनेक्ट भी करता है, वो हमको सपोर्ट या पोस्चर भी मूवमेंट में हेल्प करता है, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करता है, न्यूरॉन से सिग्नल पास करता है, प्लांट के अंदर सेल डिवीजन भी शो कर सकता है, और प्लांट के अंदर मटेरियल्स को भी ट्रांसफर करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ टिश्यूज। तो व्हाट इज द सेल समझा? अगेन सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। देयर आर 30 trillion cells in the human body approximately. Exact नहीं, approximate value है। What is tissue? A similar cells of same origin and same structure, when they come together they form a tissues. बॉडी के अंदर पहले हम लोग सेल होते हैं, सेल से फिर बॉडी के अंदर टिश्यू बनता है, टिश्यू ऑर्गन में कन्वर्ट होता है, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट होता है, and finally the organ system give rise to a big organisms, and different tissue has a different functions. Clear to everybody? समझ में? No issues. Next question. Which technique in relation to the tissue have studied in earlier class? यानी लास्ट क्लास में कौन सा टेक्निक हमने लर्न किया था? The technique which we have learned is the tissue culture technique. याद है? हमने टिश्यू कल्चर टेक्निक किया था। हम सिंगल टोटीपोटेंट, याद है ना वर्ड? टोटीपोटेंट सेल्स, टोटीपोटेंट वर्ड था, टोटीपोटेंट सेल्स। और सिंगल सेल से हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कर सकते हैं, totipotent cells. So in relation to the tissues, we have studied about the biotechnological techniques like tissue culture. तो हमने biotechnological techniques learn किया था like tissue culture in the earlier class. तो इसका आंसर होगा हमने biotechnological technique like a tissue cultures we have learned in our earlier class. Understood? Now which are the various process in tissue culture? Tissue culture के अंदर कौन कौन सा प्रोसेस था? तो आपको याद होगा primary treatment, okay, primary hardening as well as secondary hardening. Primary treatment, primary hardening and secondary hardening.
सर प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, सेकेंडरी हार्डनिंग क्या है, और वो आपको डाउट है तो नीचे डायग्राम दिया हुआ है, मैं डायग्राम से डिस्कस करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सी दिस डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, बनाना मैंने बताया, बनाना this type of bulb of the banana has a totipotent cells. They are totipotent cells, matlab this type of cells have the ability, the bulb form present in the banana are totipotent cell of banana. अगर हम एक खाली बल्ब फॉर्म लेंगे, इससे हम लोग कंप्लीट बनाना को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो लिखो यहाँ पे, टेक अ पेंसिल, राइट डाउन दिस एम्प्टी बॉक्सेस, और जो जो मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना है, कॉपी करना है। इस डायग्राम के बाजू में लिखो bulb form of source plant, BULB, BULB, bulb form, CORM form, bulb form of source plant. This is bulb form of source plant. Source form मतलब बनाना is a source plant, उससे हमने इसको निकाला है, उसका नाम है bulb form of source plant. फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट देंगे। व्हाट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, हम सेल को निकालेंगे, विल टेक वन स्मॉल टेस्ट ट्यूब और वेसल्स एंड उसमें उसको ऐड करेंगे एंड विल प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट मीडियम। सेल को जो न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए वो सारा न्यूट्रिएंट मीडियम हम प्रोवाइड करेंगे। तो आपको इस ब्रैकेट में लिखना है प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो जो सेल को आप सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे लिखना है bulb form of source plant, इस ब्रैकेट में लिखना है प्राइमरी ट्रीटमेंट। देन जैसे आप प्राइमरी ट्रीटमेंट देंगे, व्हाट हैपेंस, द सेल विल स्टार्ट डिवाइडिंग, ओके, और ऐसा बन जाएगा। इसके नीचे लिखो रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अंडर दिस गैस के नीचे लिखना है रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। रिप्रोडक्शन यानी द सेल विल स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग, तो रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। देन क्या होने वाला है, ए बॉक्स में लिखना, इसके अंदर से शूट्स और रूट निकलेगा, शूट एंड रूट। तो लिखो यहाँ पे शूटिंग एंड रूटिंग, शूटिंग SHOOTING, शूटिंग एंड रूटिंग टेक प्लेस, यानी शूट्स एंड द रूट्स आर फॉर्म, शूट्स एंड रूट्स, राइट। शूट्स एंड रूट्स हो गए। फिर इसको हम लोग बड़े से ट्रे, एक बड़े से ट्रे के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रांस प्राइमरी हार्डनिंग, ये ब्रैकेट में लिखो, दिस इज प्राइमरी हार्डनिंग, ब्रैकेट में लिखो प्राइमरी हार्डनिंग, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा प्राइमरी हार्डनिंग। व्हेन यू कलेक्ट द प्लांट्स इन अ बिग ट्रे, और बाद में हर एक प्लांट्स को आप सेपरेट कर दोगे, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हार्डनिंग, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी हार्डनिंग। तो नाउ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वन टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर। मैंने देखो यहाँ पे कोई सीड नहीं लिया, मैंने बनाना प्लांट का टोटीपोटेंट, दिस इज टोटीपोटेंट सेल्स विच इज कॉल्ड एज अ बल्ब फॉर्म ऑफ बनाना प्लांट। उसके अंदर से सेल को लिया, उसको प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स दिया, यानी जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया, इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग। उसके अंदर से शूट्स और रूट्स निकलेंगे, दैट इज शूटिंग एंड रूटिंग। सारे प्लांट को मैं क्या करूंगा, एक ट्रे के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा, दैट इज प्राइमरी हार्डनिंग। प्लांट्स और बड़े हो जाएंगे, सारे प्लांट्स को मैं सेपरेट कर दूंगा, दैट इज सेकेंडरी हार्डनिंग, एंड देन आई विल सेंड इनटू द व्हाट, इनटू द फार्म फॉर व्हाट, फॉर फर्दर फॉर अ ग्रोथ। एंड दैट इज वे, एंड दिस इज वे हाउ आपने एक न्यू प्लांट्स को डेवलप किया विदाउट एनी सीड, आपने टोटीपोटेंट सेल से डेवलप किया, यानी दिस इज टिश्यू कल्चर। आप सेल्स, टोटीपोटेंट सेल से टिश्यू बना रहे हो एंड टिश्यू से प्लांट को बना रहे हो, एंड दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक। आई थिंक एग्जैक्टली सेम डायग्राम हमने 9th में लर्न किया था। यहाँ पे जो प्रोवाइड करते हो इनिशियल इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रीटमेंट, देन उसको अलग से ट्रे में सप्लाई करते हो, दैट इज प्राइमरी हार्डनिंग। और बाद में अलग अलग प्लांट को जब अलग अलग सेपरेट कर दोगे अलग अलग बॉक्सेस में, देन दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हार्डनिंग। तो क्वेश्चन क्या था आगे, नाम कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला तुम्हें, व्हाट आर द वेरियस प्रोसेस इन द टिश्यू कल्चर। द प्रोसेस इन टिश्यू कल्चर इज what, primary nutrition, then primary hardening, then secondary hardening. These are the different processes take place in a tissue culture technique. Really you understood everybody, समझ में आ रहा है, the various process in the tissue cultures,
क्लियर, कुछ इश्यू नहीं है। मैंने एक स्मॉल वीडियो निकाला है टिश्यू कल्चर का, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन वेरी गुड वीडियो। आपके टेक्स्ट बुक से ज़्यादा कुछ दिया हुआ है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, खाली एज अंडरस्टैंडिंग प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो। मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो, आप लोग को भी अच्छा आएगा, टिश्यू कल्चर के बारे में पता चलेगा। तो लेट अस डिस्कस अबाउट टिश्यू कल्चर। थोड़ा साउंड का देख लेना, साउंड थोड़ा इसका बहुत ज़्यादा है वॉल्यूम, बट वेरी गुड इंफॉर्मेशन अबाउट टिश्यू कल्चर। ओके, Tissue culture is a method used for plant propagation in addition to yes, listen carefully. the traditional plant breeding techniques. It was during the 1950s that scientists found that any part of a plant grown in nutrient media under sterile conditions can give rise to a whole new plant. This property of plant cells to give rise to a whole new plant is called totipotency. Tissue culture uses this property of plant cells for asexual plant propagation in an aseptic environment. It requires a nutrient medium that contains sucrose, inorganic salts, vitamins, proteins, and growth regulators such as auxins and cytokinins. The tissue culture technique involves several steps. The first step is excising a small part of plant tissue, like the root, shoot, or leaves of a plant. Then placing the cutout part or explant in a suitable nutrient medium, followed by allowing the explants to multiply and form a group of tissues called callus. The callus is then allowed to multiply to form many plantlets, which are then transferred to a different container for rapid multiplication. Finally, the developed plantlets are transplanted to the soil for normal growth. Therefore, tissue culture is performed using a small part of a plant to develop many plants, and so is also called micropropagation. As all these plants are developed from the same part of the parent plant, they are genetically identical and called somaclones. Micropropagation or tissue culture is employed in the large-scale production of tomato, banana, and apple. This technique can also be used to propagate high-yielding, disease-resistant varieties in a short span. Even if a plant is diseased, tissue culture can be used to get a healthy plant using the explant of the apical or axillary meristem. This is because the meristem is always free of disease and microbes. Culturing of meristems has been successfully carried out in plants such as banana, sugarcane, and potato. In addition to asexual propagation of plants, tissue culture is also used to mix two different species of plants that are otherwise sexually incompatible. Here, individual cells are isolated from each plant species and are placed in a culture medium. The cell wall gets digested in both cells, which aids fusion of the two protoplasts of different species, resulting in a hybrid protoplast. The hybrid protoplast is called a somatic hybrid, which gives rise to a whole new plant and may contain the desired characters of both species.
This process of developing a hybrid plant using somatic cells is called somatic hybridization. It was employed while fusing the tomato and potato plants to obtain a hybrid plant. As a result, the hybrid plant resembled the tomato, but it didn't combine all the desired characters as expected. In this manner, tissue culture, somatic hybridization, and other plant breeding techniques provide a huge potential for manipulation of plants to produce new varieties, boost food production, and enhance crops. I think very clear to everybody. I think it's very clear to everybody. Tissue culture एकदम समझ में है. How the leaves are taken, या roots उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं, then multiply करते हैं, and they you rise to a new plant. इसमें हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक भी जो आप फर्दर लर्न करोगे इन द 11th and 12th स्टैंडर्ड जो और हाई लेवल है. लेकिन बेसिक टिश्यू कल्चर समझ में आया. टोटिपोटेंट सेल्स लिया हमने, और सेल्स को हमने न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला. न्यूट्रिएंट मीडियम में सारे शुगर्स मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ऑक्सीजन हार्मोन्स होना चाहिए, and the cell will start multiplying, changing into small plantlet and can be grown into a large scale. तो आई थिंक जो टिश्यू कल्चर है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया, एवरीबॉडी को समझ में है. दिस इज द ऑल थिंग व्हिच वी हैव लर्न इन अ 9th स्टैंडर्ड, द सेम थिंग वी हैव लर्न हियर. किसी को कुछ इशू नहीं लग रहा टिश्यू कल्चर? वीडियो भी एकदम क्लियर था, इससे आपको टिश्यू कल्चर टेक्निक समझ में आ गया, राइट? तो हम आगे जाते हैं. ओके, चैप्टर में टाइम लगने वाला है, आगे नहीं, चैप्टर भी बहुत बड़ा है, तो विल गोइंग टू टेक सम टाइम. ओके, बट नो इश्यूज, अपने करना पड़ेगा. Okay, what is the next question they are given? Let us read. The next question क्या दिया हुआ? Okay, तो ना टेक्स्ट बुक में देखो, हमने हमने यहाँ तक रेंज कर दिया. Okay, we have studied the plant reproduction technique of tissue culture in the last class. Stem cells are used for that purpose. Whether the stem cells are present in animal, what are the stem cells? The totipotent cells are called as a stem cells. The totipotent cells are called as a stem cells. तो क्या यानी हमने टोटिपोटेंट सेल लेके पूरे प्लांट को ग्रो कर दिया? तो क्या हमारे बॉडी में भी ऐसे सेल है जो एक सेल लेके हम पूरे बॉडी को डेवलप कर सकते हैं? सोचो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हमने प्लांट में देखा कि उसके जो टोटिपोटेंट सेल्स को लिया और उसको टिश्यू कल्चर टेक्निक किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, तो एक सिंगल सेल से हमने पूरे के पूरे प्लांट को डेवलप कर दिया. तो क्या ह्यूमन बॉडी में पॉसिबल है कि हम एक सिंगल सेल से पूरे एनिमल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट स्पर्म एंड एग? यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. वेदर द स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स? यस, द स्टेम सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एनिमल्स. एनिमल्स में भी स्टेम सेल्स है. हम सिंगल सेल से पूरे बॉडी को डेवलप कर सकते हैं. सर फिर वो सिंगल सेल्स कहाँ पे आता है, किधर है? दैट सिंगल सेल्स इज डेवलप एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज. एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब व्हेन अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जॉइन टुगेदर दे फॉर्म जाइगोट. क्या फॉर्म करते हैं? जाइगोट. और मैंने बताया द जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बनता है टिल 14 डेज. जब उसका कॉन्सेप्शन हुआ मतलब जब मेल स्पर्म और फीमेल एग ज्वाइंट हो गए, उसको कॉन्सेप्शन बोलते हैं. कॉन्सेप्शन के बाद 14 डेज तक सेल मल्टीप्लाई हो रहा है. 14 डेज तक सारे के सारे सेल आर अलाइक. अलाइक मतलब एक जैसे. मम्मी के यूट्रस में, मदर के यूट्रस में पहले 14 डेज सारे के सारे सेल एक जैसे होते हैं. 14 डेज के बाद दे स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग. डिफरेंशिएटिंग मतलब एक सेल जाके लीवर फॉर्म करेगा, एक सेल जॉइन जाके किडनी फॉर्म करेगा, जो एक्सक्रीशन में अच्छा है वो किडनी को फॉर्म करेगा, जो सर्कुलेशन में अच्छा है वो जाके हार्ट फॉर्म करेगा, जो रेस्पिरेशन के लिए अच्छा है वो लंग्स फॉर्म करेगा. उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन मतलब अपने आप को किसी चीज के लिए तैयार करना, डिफरेंशिएट करना. लेकिन वो कभी स्टार्ट होता है? 14 डेज के बाद. लेकिन फर्स्ट डे और 14 डेज के बीच में, मोस्टली 5 to 7 डेज के बीच में, अगर मैंने वो सेल निकाल लिया या साइंटिस्ट ने सेल निकाल दिया, कहाँ से? मम्मी के यूट्रस से, और उसको लैब में सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया,
तो सिंगल सेल से हम अपनी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को डेवलप कर सकते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, एनीथिंग वी कैन ग्रो। हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर सकते हैं। तो देयर आर स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन एनिमल, पूरे बॉडी। अगर पूरे बॉडी ग्रो करने वाला भी है, कुछ ऐसे भी सेल है जिसको हम लोग एडल्ट सेल बोलते हैं। एडल्ट सेल मतलब जब बेबी बॉर्न हो गया, तब बेबी बॉर्न होने के बाद भी उसके पास कुछ स्टेम सेल रहते हैं। सर वो स्टेम सेल कहाँ कहाँ पे रहते हैं आप लोगों को पता भी होगा। उम्बिलिकल कॉर्ड, मालूम है ना उम्बिलिकल कॉर्ड, जहाँ से फूड सप्लाई होता है। आपने सुना होगा आजकल उम्बिलिकल कॉर्ड को स्टोर करते हैं, उसको कट करके ना उसको स्टोर करते हैं बेबी बॉर्न हो गया तो। मालूम है क्यों? कि बोलते हैं उम्बिलिकल कॉर्ड है वो कैंसर थेरेपी में यूज हो सकता है कि नहीं? कल बच्चे को कैंसर हो गया या उसके भाई बहन को कैंसर हो गया तो कैन बी यूज। उम्बिलिकल कॉर्ड का जो ब्लड है वो ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया मालूम है, ल्यूकीमिया तो ब्लड कैंसर, उसको ट्रीट करने में यूज होता है। ब्लड कैंसर को ट्रीट कर सकता है, उसके पास एबिलिटी है नए सेल प्रोड्यूस करने का। हमारा बोन मैरो, बोन मैरो पता है? बोन के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है उसमें दो टाइप का, रेड मैरो, येलो मैरो, दो टाइप का मैरोस होता है। एंड रेड क्या कर, बोन मैरो में क्या बनता है? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट। ये सुना है? हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज मर जा रहे हैं और नए प्रोड्यूस हो रहा है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर के सेल्स के पास एबिलिटी है न्यू सेल्स प्रोड्यूस करने का। तो क्या वो स्टेम सेल्स हुए? यस, दे आर स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी। एक एम्ब्रियोनिक होता है, जब फर्स्ट 14 डेज में आपने निकाल दिया, उसके पास बहुत एबिलिटी है, लेकिन एडल्ट सेल्स के पास लिमिटेड एबिलिटी होता है। एडिपोस, फैट, हमारा फैट टिश्यूज है ना, फैट बढ़ता है, फैट सेल्स कैन बी डिवाइड, उसको एडिपोस टिश्यूज बोलते हैं, उसके अंदर भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट है। तो द स्टेम सेल्स आर टू टाइप, एक होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और एक होता है एडल्ट। बच्चा बॉर्न होने के यानी स्टार्टिंग में 14 डेज के अंदर अगर आपने सेल को निकाल दिया, उसको एम्ब्रियोनिक बोलते हैं, उससे आप किसी भी बॉडी ऑर्गन्स को डेवलप कर सकते हो। और बेबी बॉर्न होने के बाद आपने स्टेम सेल को यूज किया, एडल्ट स्टेम सेल। एडल्ट स्टेम सेल का लिमिटेड रेंज होता है, कम सेल्स ही बना सकते हैं। अंडरस्टूड? द स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, assign the names in the figure given below and explain the various stages those kept blank। तो ये सब ब्लैंक को भरना है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया नाम। इसमें आप क्या लिखोगे? मैंने बताया था प्राइमरी ट्रीटमेंट। हियर यू विल राइट योर प्राइमरी ट्रीटमेंट। यहाँ पे आप लिखोगे शूटिंग एंड रूटिंग, यहाँ पे लिखोगे प्राइमरी हार्डनिंग, दिस इज सेकेंडरी हार्डनिंग, और जो बीच का जगह खाली है दिस इज प्रोसेस इन टिश्यू कल्चर। बीच का जो सेंटर है खाली जो उसे लिखो process in a tissue culture। These are the process which is carried out in a tissue culture। तो बीच के बॉक्स में लिखना है process in tissue culture। This is a process we use in a tissue culture। अंडरस्टूड? अगेन चैप्टर में एक्सप्लेनेशंस बहुत रहेगा, बड़ा चैप्टर भी है, टाइम लगने वाला है, बट आई विल फिनिश आउट। इसको फिनिश करना मुझे कैसे भी करके 2-4 दिन में। ओके, नेक्स्ट इज साइटोलॉजी। व्हाट इज साइटोलॉजी? अ स्टडी ऑफ सेल्स, अ साइंस in which we study about the cell is called cytology। Cytology मतलब study of cell। Earlier we have studied the structure, type and organelles of the cell and this is called cell biology or cytology। जब आप सेल के स्ट्रक्चर, सेल के ऑर्गेनल्स या सेल के टाइप पढ़ो, जब सेल के बारे में पढ़ोगे, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल्स के टाइप क्या है, सेल के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनल है, दैट स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड cytology। Cytology का मतलब a science which deals with the study of cells। Beside above mentioned point, it includes the study of cell division and many other aspects। Cell division भी इसके अंदर आता है and cells के बहुत सारे aspects cytology के अंदर आते हैं। There are revolutionary changes in the field of human health due to cell biology। सेल बायोलॉजी के कारण जब हमने सेल के बारे में स्टडी किया, there has been a revolutionary change in the field of human health। ह्यूमन हेल्थ के बारे में हम कहते हैं रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए, बहुत सारी चीजें हम डेवलप कर पाए विथ रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन हेल्थ। रिसर्च इंस्टीट्यूट स्पेशली डेडिकेटेड फॉर द रिसर्च ऑन सेल्स आर एस्टेब्लिश्ड एट पुणे एंड बैंगलोर। पुणे एंड बैंगलोर के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कंटिन्यूसली सेल्स का स्टडी चालू है, अबाउट ह्यूमन सेल्स और एनिमल सेल्स या बैक्टीरियल या माइक्रोब, सारे सेल्स के बारे में स्टडी चल रहा है। अभी आपको मालूम है जो कोविड-19 का वायरस, उसके बारे में स्टडी कर रहा है पूना में, मालूम है ना, वायरल इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है। और वो लोग शायद दे आर टेलिंग कि इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप द वैक्सीन।
अब ऐसा बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन बोल रहे हो वैक्सीन बहुत जल्दी तैयार कर देंगे। वहाँ पे वायरस के सेल्स के बारे में स्टडी कर रहा है। तो ऐसे ऐसे सेंटर्स है जहाँ पे इंडिया में सेल्स के बारे में स्टडी किया जाता है। द नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस एट पुणे, देखो पुणे दिया हुआ है। एंड एनस्टेम, एनस्टेम मतलब स्टेम सेल्स के बारे में, स्टडीड एट बैंगलोर और इन्वॉल्व इन अवेलेबल रिसर्च। ऐसे इंडिया ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोल के रखा है, गवर्नमेंट फंडिंग करता है, गवर्नमेंट पैसा देता है, एंड साइंटिस्ट क्या करते हैं, स्टडी अबाउट द सेल। Visit both the website mentioned above with the help of teacher and try to understand the research. Understanding the institute, the institutes में we are studying about the cells, which is very good. Now let us talk about stem cells. Stem cells का हमने डिस्कस किया, उसका डेफिनेशन ही मैंने निकाला है, चाहिए तो आप देख सकते हो। An undifferentiated cells of multicellular organism. What is stem cell? And undifferentiated मतलब उसने आपको अभी तक डिफरेंशिएट नहीं किया, अलग नहीं किया है, यानी उसके पास एबिलिटी है बहुत सारा सेल्स डेवलप करने का। एन अनडिफरेंशिएटेड सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द इनडिफरेंटली मोर सेल्स, बहुत सारे मोर सेल्स को वो क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, ऑफ सेम टाइप फ्रॉम विच सर्टेन अदर काइंड्स ऑफ सेल्स कैन बी अराइज। एक ऐसा सेल जो अपने आप को अनडिफरेंशिएट किया है और वो बहुत सारे सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है, और वो सेल से बहुत सारे अनडिफरेंशिएशन सेल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ऐसे सेल्स को हम लोग स्टेम सेल्स बोलते हैं। और सेल्स व्हिच कैन प्रोड्यूस मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज द स्टेम सेल्स। मैंने बताया प्लांट बॉडी के अंदर भी स्टेम सेल्स होते हैं और एनिमल बॉडी के अंदर भी स्टेम सेल्स होता है, दोनों के अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट। अंडरस्टूड? तो दिस आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स present in the body of multi-organisms, and these cells give rise to all other type of cells. These cells give rise to all other types of cells present in the body of multicellular organism, and similarly these cells play a very important role in the wound healing. wound healing मतलब गिर गया और मुझे मार लग गया, I've got the wound, तो ऊपर का सेल्स डैमेज हो जाते हैं बेटा, the cells get damaged, है ना, सेल्स डैमेज हो गए तो आफ्टर सम डेज के बाद न्यू सेल्स आ जाते हैं। न्यू सेल्स आ जाते हैं मतलब बॉडी ने न्यू सेल्स प्रोड्यूस किया होगा, तभी तो न्यू सेल्स आ गए। और वो बॉडी के अंदर न्यू सेल्स कौन प्रोड्यूस करता है, द स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन माय बॉडी। द स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन बॉडी डेवलप्स अ न्यू सेल। तो आपका जो वुंड हीलिंग होता है वो क्यों होता है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर स्टेम सेल्स है और वो स्टेम सेल न्यू सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है एंड आपका वुंड इज गेटिंग। अंडरस्टूड? We have studied the stem cells of plant in previous class. Now we shall study the stem cells in a animals. हमने plant cells किया था, totipotent cells. Totipotent cells are the plant stem cells. But इस chapter में हम learn करेंगे the stem cells present in a human body, particularly in a human being. New organism is formed from the zygote. What is zygote, beta? Zygote is the first step formation of baby. It is a single cell. कभी बनता है? When egg cell के अंदर sperm gets entered. When a sperm gets entered in the egg cell, they get fused together and a zygote is formed. That is formed by the fusion of male and female gametes at the earliest stage of development. कितना दिन मैंने बताया? 14 days. zygote बनने के बाद के 14 days के अंदर सेल के पास इतनी एबिलिटी है, जब वो डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, इतनी एबिलिटी है कि वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन को डेवलप कर सकता है। ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ सेल्स। जाइगोट एक सिंगल सेल है, ऐसे मास ऑफ सेल्स डेवलप करता है, जिसको साइंटिफिक वर्ड में भी कॉल एज अ ब्लास्टोसिस्ट। हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें 7 to 8 days लगते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ ब्लास्टोसिस्ट। ओके, तो at earliest development, organism in the form of mass of cell, all the cells in the mass are almost alike. उस 14 days के टाइम सारे के सारे cells are alike and these cells are called as the stem cells. मैंने आपको बताया। They are also called as the embryonic stem cells. मैंने बताया दो टाइप के stem cells present है। What are the two types of stem cells? Embryonic stem cells and adult stem cells. Embryonic मतलब जब मम्मी के यूट्रस में फर्स्ट 14 डेज के अंदर से आपने सेल को बाहर निकाल दिया, देन इट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। और एडल्ट सेल्स मतलब बेबी बॉर्न होने के बाद। ओके, उसका बहुत ही लिमिटेड काम होता है। कहाँ से मिलता है? सिर्फ बेबी बॉर्न होने के बाद कहाँ से मिलेगा? तो उसके उम्बिलिकल कॉर्ड से आपने ब्लड निकाल दिया, उसके बोन मैरो से आपने निकाला,
उसके एडिपोज टिश्यू से आपने निकाला, उसके ब्लड के अंदर से निकाला, ब्लड में भी एबिलिटी है कुछ सेल्स डेवलप करने का। तो इफ यू आर रिमूविंग फ्रॉम इट्स ब्लड, यू आर रिमूविंग फ्रॉम इट्स बोन मैरो, देन दे आर कॉल्ड एज एडल्ट स्टेम सेल। सेकेंड चीज, सर आप 1 और 14 डेज के बीच में से मम्मी के यूट्रस में से कैसे निकालोगे? क्यों? क्योंकि मम्मी को तो पता ही नहीं चलता, फीमेल को शी इज प्रेग्नेंट वो पता चलता 1 मंथ के बाद, 1 मंथ या 1.5 मंथ 2 महीने के बाद। तो 1 डे और 14 डेज तो चला गया, तो फिर हम लोग स्टेम सेल कैसे निकालेंगे? नेचुरल प्रोसेस में स्टेम सेल निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि फीमेल को पता ही नहीं चलता है फॉर फर्स्ट 1 मंथ कि शी इज प्रेग्नेंट। तो कैसा है? ये खाली पॉसिबल है IVF टेक्निक में। व्हाट इज IVF? IVF मतलब अ टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक। यू नो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है? टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं? बेबी टेस्ट ट्यूब में फॉर्म नहीं होता है, याद रखना। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब दे टेक टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर फीमेल का एग निकालते हैं, उसके ओरी से टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। दे टेक द मेल स्पर्म एंटर इनटू द एग सेल इन अ टेस्ट ट्यूब, दे प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब के अंदर जाइगोट फॉर्म होगा। द जाइगोट विल स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन एंड फाइनली अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट इज फॉर्म, जिसको 1 से 14 डेज लगता है। एक बार ब्लास्टोसिस्ट बन गया, वो ब्लास्टोसिस्ट निकाल के वापस फीमेल के यूट्रस में अटैच कर देते हैं एंड बेबी फीमेल के यूट्रस से ही बॉर्न होता है। लेकिन सर इसको टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोलते हैं? स्टार्टिंग का जो पीरियड था वो फीमेल के यूट्रस में नहीं हुआ, कहाँ पे हुआ? टेस्ट ट्यूब के अंदर हुआ, इसलिए उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्स्ट 14 डेज बॉडी के बाहर रहता है, उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टेम सेल्स को बाहर निकाल के स्टोर कर सकते हैं, और वो स्टेम सेल से हम कोई भी ऑर्गन मतलब लीवर, किडनी, कुछ भी बना सकते हैं अपनी बॉडी का। अभी आज देखो बहुत सारे लोग लीवर फेलियर से मर जा रहे हैं, हार्ट फेलियर से मर जा रहे हैं, किडनी फेलियर, क्योंकि उनको किडनी लीवर नहीं मिल रहा है। कुछ सालों के बाद लैब में किडनी लीवर हम बनाएंगे, यानी कोई भी आदमी किडनी लीवर से नहीं मरेगा फेलियर से, उसको ट्रांसप्लांट करना है, बहुत इजी है। आप लैब से किडनी मिलेगा, किडनी लो, अपने ऑपरेशंस करेंगे, डॉक्टर अटैच कर देंगे एंड योर लाइफ कैन बी सेव। यू विल एबल टू मेक ऑर्गन्स इन अ लैब कुछ सालों के अंदर बाय यूजिंग अ स्टेम सेल्स। तो देखा आपने, सेल के बारे में स्टडी करके हमको स्टेम सेल्स के बारे में पता चला, जो साइंटिफिक ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा यूज है, और भी बहुत सारे डिसीज में यूज हो सकता है स्टेम सेल्स। एंड विच आर द स्टेम सेल और स्पेशलाइज्ड सेल्स विच कैन डेवलप नंबर ऑफ सेल्स, ओके, मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है, एंड नंबर ऑफ सेल्स कैन डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स। अंडरस्टूड? मैंने एक स्टेम सेल्स का वीडियो निकाला है, मैं दिखा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना है, आपको स्टेम सेल्स का डाउट क्लियर होगा। बहुत केयरफुली लिसन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो बहुत ध्यान से सुनना है। एवरीबॉडी विल लिसन केयरफुली, तो स्टेम सेल्स के बारे में डाउट क्लियर हो जाएगा। The human body contains organs such as bones, the brain, heart, and reproductive organs. The basic cells that give rise to all of the different cells in these organs are called stem cells. One type of stem cell is an egg cell from a woman that has been fertilized by a sperm from a man. This single cell, called a zygote, is the first cell in a developing human being. It's also called a totipotent stem cell because it can form any type of cell in the body, as well as the umbilical cord and placenta. After a zygote has divided a few times, it becomes an early stage embryo called a blastocyst. Embryonic stem cells come from the cells inside the blastocyst. Embryonic stem cells are pluripotent. This means they can form any cell in the body, but not the cells in the umbilical cord or placenta.
In the lab, embryonic stem cells are donated from leftover embryos created during in vitro fertilization. In vitro fertilization is a procedure to help a woman become pregnant. Another type of stem cell is an adult stem cell. Small groups of these cells are found in some organs, such as the skin, after birth and into adulthood. Adult stem cells are multipotent. This means they can only become a few different cell types related to the organ where they're found. For example, the skin contains a small number of adult stem cells that can divide to create new skin adult stem cells. Or they can become more specialized skin cells to replace those that are lost due to cell aging or damage. In the lab, scientists can now induce or cause a regular body cell, such as a skin cell, to change into a pluripotent stem cell. Like embryonic stem cells, these induced pluripotent stem cells can become any type of cell in the body. Scientists study stem cells to learn how and why they become many different types of cells. In the future, these cells may be used to regrow tissues and organs that have been damaged by injury or disease. Stem cell therapy is a procedure that uses stem cells to treat a disease or condition. Currently, stem cell therapy only treats diseases and cancers of the blood. In leukemia, for example, the patient's bone marrow makes many abnormal white blood cells that can't do their job to fight infection. Over time, these abnormal cells crowd out the production of healthy white blood cells. In stem cell therapy for leukemia, called hematopoietic stem cell transplantation, a doctor will take a sample of blood or bone marrow from the patient or a donor. In some cases, donor blood may come from a baby's umbilical cord after it's born. These tissue samples contain healthy hematopoietic or blood-forming stem cells. Then, doctors will give the patient chemotherapy drugs or use radiation to kill the abnormal white blood cells and their stem cells. Once the abnormal cells are gone, the doctor will transplant the healthy hematopoietic stem cells from the tissue samples into the patient. These healthy stem cells will make new blood cells, including normal white blood cells, which will allow the body to fight off infections. I think very clearly everybody have understood. बहुत अच्छा दिया stem cells. उसमें embryonic cells के भी बताया, zygote and blastocysts और adult cells के बारे में बताया. कैसे adult cells हमारे skin के अंदर होते हैं, या can be used in a cell therapy like a leukemia cancers के लिए use हो सकते हैं. इसके बारे में और studies चालू है. आगे चल के साथ हमको और बहुत कुछ पता चलेगा about the stem cells. And ऐसे बहुत सारे disease like a cancer जैसे disease को भी हम लोग ठीक कर पाएंगे. मुझे और कुछ डिस्कस करना अब द नेक्स्ट पेज में. ये पेज तो हो गया. ओके, नेक्स्ट पेज में क्या दिया, लेट अस लर्न. ओके, now during further development, these cells for any type of cells, different type of tissues and perform different function body. Any stem cells है, during further development, these cells form any time. The stem cells can form any type of cells, different type of tissues and perform a different function in the body. यही cells जाके different cells form करेंगे, इससे different type of tissues form होगा and different tissue will perform a different function in the body. This is the differentiation of the stem cell. पहले undifferentiated था, अभी उसने अपने आप को differentiate कर दिया, अलग अलग कामों के लिए अपने आप को divide कर दिया. However, once the tissues are formed, the cells in those tissues at the most can form a same type of cells. और एक बार टिश्यू बन गया और वो टिश्यू में से अगर आप सेल निकाल रहे हो तो खाली वो उस टिश्यूज के सेल्स बना सकता है, वो डिफरेंट सेल्स नहीं बना सकता है.
अनडिफरेंशिएशन होने से पहले वो सारे सेल्स बना पाएगा, और एक बार वो डिफरेंशिएट हो गया, वो कोई टिश्यूज में कन्वर्ट हो गया, और अभी अगर आप उस सेल्स को ले रहे हो तो खाली वो डिफरेंट जो टिश्यू में से लिया है उसी टिश्यूज को बनाएगा, बाकी डिफरेंट टिश्यूज या सेल्स को नहीं बना सकता है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. However, once the tissues are formed, the cells in those tissue at the most can form a same type of cells only. This is in this case in each part of the body. However, stem cells are present for longer duration in some part of the body. Some part of body तो लाइफ टाइम तक रहता है, मतलब हमारे बोन मैरोज, हमारे एडिपोज टिश्यू में तो लाइफ टाइम तक वो स्टेम सेल्स रहते हैं, लेकिन उनका लिमिटेड है, कुछ लिमिटेड सेल्स ही बना. बोन मैरो मतलब वो खाली आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और कुछ नहीं बना सकते, लिमिटेड है. वो लीवर किडनी नहीं बना सकता. एडिपोज टिश्यू है तो एडिपोज सेल्स ही बना सकता, और कुछ नहीं बना सकता. स्किन के सेल्स है तो स्किन के जो डैमेज सेल्स को बना पाए, और कुछ नहीं. हाँ, उनके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस किया जैसे वीडियो में दिखाया था, देन इट्स पॉसिबल, अदरवाइज नेचुरली बनाने से. स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द उम्बिलिकल कॉर्ड. मैंने बताया बाय व्हिच द फीटस इज जॉइंड टू द यूट्रस ऑफ द मदर. उम्बिलिकल कॉर्ड मालूम है ना, जब बेबी बॉर्न होता है वो पाइप जैसा रहता है जिसको कट करते हैं, जिससे फूड इज ट्रांसफर टू द बेबी, ओके, फ्रॉम मदर. स्टेम सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द ब्लास्टोसिस्ट. वीडियो में भी दिया था. ब्लास्टोसिस्ट स्टेज मतलब zygote when start showing the cell division changes into a ball like mass which is called as the blastocyst stage of embryonic development. Stem cells are present in a red bone marrow. red bone marrow मतलब हमारे बोन के बीच में सेंटर में, ओके, दो हॉलो होता है ना, हॉलो गैप होता है, that gap is called red bone marrow. और उसके आजू बाजू में जो होता है, ओके, is the yellow bone marrow. ओके, red bone marrow and adipose. adipose मतलब फैट टिश्यूज, उसके अंदर एबिलिटी है टू प्रोड्यूस द स्टेम सेल्स, लेकिन लिमिटेड है. वो बॉर्न होने के बाद होता है, दैट इज एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है. तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग बॉर्न हो गया तभी भी उसके पास स्टेम सेल्स होते हैं, उसके रेड बोन मैरो में और उसके एडिपोज टिश्यूज में. इट इज बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज एंड द डीजेनरेटेड पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन. डीजेनरेटेड मतलब ऑर्गन जब हम बॉर्न किए तो अच्छा था और धीरे धीरे भी वो क्या हो गया, खराब हो गया. डीजेनरेट, खराब होना. डीजेनरेटेड पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेम सेल्स हम कोई भी टिश्यूज बना सकते हैं, और कोई भी बॉडी ऑर्गन जो डीजेनरेट हो गया, किडनी, लीवर डीजेनरेट हो गया, हार्ट खराब हो गया, उस ऑर्गन्स को भी हम डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स. इतना ज्यादा तक डीप साइंस पहुंच गया. अब स्टेम सेल्स निकालते हैं, मैंने बताया निकाला 1 डे और 14 डेज के बीच में, तो उसको कहाँ पे स्टोर करते हैं. तो देयर इज वेरी बिग मशीन जिसमें हम नाइट्रोजन यूज करते हैं. देखो नाइट्रोजन आपको मालूम है कूलिंग -196 डिग्री सेल्सियस तक दे सकता है. लिक्विड नाइट्रोजन का कूलिंग -196 डिग्री सेल्सियस तक है. तो फॉर दिस पर्पस ऑफ प्रिजर्वेशन द स्टेम सेल्स आर केयरफुली कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स लाइक या कॉर्ड ब्लड या रेड बोन मैरो या एम्ब्रॉय से निकालते हैं एंड केप्ट इन अ स्मॉल स्टेराइल वाइल्स. मतलब स्टेराइल मतलब उसको स्टेराइल करना है, मतलब उसको केमिकल से साफ करना है कि उसको सारे बैक्टीरिया वायरस मर जाए. वाइल्स मतलब छोटा सा what we can say glass bottle. sterile ones मतलब small glass bottles. sterile मतलब उसको केमिकल से साफ करके सारे बैक्टीरिया उसको किल कर देना है. the vials and the bottle should be free from bacteria and then keep that stem cells, and these vials are kept in a liquid nitrogen of how much temperature, -135 डिग्री सेल्सियस से -190 डिग्री सेल्सियस आप स्टोर कर सकते हो, और बहुत सालों के लिए. डेज नहीं, हमें बोलता है ईयर्स, ईयर्स तक उस स्टेम सेल को आप स्टोर कर सकते हो, ईयर्स तक स्टोर कर सकते हो. और कभी भी आपको जरूरत है आप क्या करोगे, उसको यूज कर सकते हो. अंडरस्टूड. तो दिस इज द फंक्शंस ऑफ स्टेम सेल. ओके, अगेन चैप्टर बहुत बड़ा है. आई थिंक चैप्टर 12 पेजेस का. आज तो 1.5 पेजेस ही हम कर पाए. अगेन मुझे दिखाना है, वीडियोस बताना है, सब बताना है, तो टाइम लगने वाला है. फिर मैं स्टार्ट किया तो खत्म तो करेंगे, कितना भी टाइम लग जाए, नो इश्यूज है. ओके, तो आप लोग को प्लांट टिश्यू कल्चर समझ में आया, उसका वीडियोस मैंने दिखाया. आपको स्टेम सेल्स क्लियर होगा एकदम. स्टेम सेल्स हमारे बॉडी में ऐसे पूरे बॉडी को ग्रुप कर सकते हैं. उसमें भी 2 टाइप होते हैं, एम्ब्रियोनिक जब यूट्रस के 14 डेज से हमने सेल निकाला, और एडल्ट मतलब जब हम बॉर्न हो जाते हैं तब निकालते हैं. तो आई थिंक इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी. जो नेक्स्ट पार्ट है आई विल कंप्लीट ऑन कंटिन्यू ऑन संडे. संडे को लेक्चर 1 बजे, तभी मैं आपको सिखाऊंगा. टिल देन डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लीज वर्कशीट लिखो. आज वर्कशीट नंबर 5 में शेयर करता हूँ आपको. 4 मैंने शेयर किया था, टुडे आई विल शेयर वर्कशीट नंबर 5, और एक और टोटल 6 वर्कशीट है उसका. ओके, तो टुडे आई विल शेयर द 5th वाला
और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं 6th वाला शेयर करूंगा. ट्राई टू राइट डाउन. नेक्स्ट टेस्ट आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में होने वाला है. टिल देन प्लीज टेक केयर. बाय. ओके, डाउट है तो मुझे फोन करना है.